الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی شمس الہدایۃ والیقین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے عزیزوں، امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر وافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پچھلی والی کلاس میں ہم نے حروف جر اور ان کے استعمال کا سبق مکمل کر لیا تھا۔ مجھے امید ہے آپ نے پچھلی والی کلاس کو اچھے سے دیکھا ہوگا اور سمجھا بھی ہوگا۔ اگر ابھی تک آپ میں سے کسی نے اس کلاس کو نہیں دیکھا ہے تو یہاں پر جو آئی کا بٹن شو ہو رہا ہے اس پر آپ کلک کیجئے اور اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھ لیجئے اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے۔ تو آج ہم دروس اللغۃ العربیۃ لغیر الناطقین بہا کا 5واں سبق شروع کر رہے ہیں۔ یعنی آج ہمارا درس جو ہے وہ ہے الدرس الخامس، 5واں درس، جس کا موضوع ہے المرکب الاضافی۔ یعنی آج کی کلاس میں ہم مرکب اضافی کے بارے میں جاننے والے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے عربی گرامر سیریز کے اندر ناؤن والی پلے لسٹ کے اندر آپ کو ایپیسوڈ نمبر 26 میں مرکب اضافی ڈیٹیل سے پڑھایا ہے۔ اگر آپ نے اس کلاس کو دیکھا ہے تو آج کی کلاس انشاءاللہ بڑی ہی آسان ہوگی اور جتنی بھی اس کے اندر ایگزامپلز آئیں گی، تمارین آئیں گی، وہ آپ کو بآسانی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائیں گی۔ لیکن ان تمارین کو شروع کرنے سے پہلے، اس درس کو شروع کرنے سے پہلے ہم نے مرکب اضافی کو سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ یہاں پر میری کوشش یہ رہے گی کہ میں مرکب اضافی کو بڑے ہی آسان انداز میں آپ کو سمجھا لوں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس سبق کو سمجھنے سے پہلے ہم نے مرکب اضافی کو جاننا ہے کہ مرکب اضافی کیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو چلیے بھائی پیج نمبر 2 کی طرف ہم یہاں پر سب سے پہلے مرکب اضافی کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے کیا۔ سمپل الفاظ میں آپ یاد رکھیں کہ مرکب اضافی جو ہے نا یہ 2 اسموں سے مل کر بنتا ہے، یعنی 2 ناؤنز جب ملتے ہیں تو تب آپ کا مرکب اضافی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم کہیں گے کہ مرکب اضافی 2 اسموں سے مل کر بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مرکب اضافی جو ہے نا جب 2 ناؤنز ملتے ہیں تو ہمارا ایک مرکب تیار ہوتا ہے مرکب اضافی کا۔ اور یاد رہے یہ جو مرکب اضافی ہے نا یہ آپ کا ناقص ہے۔ کیا ہے بھائی؟ یعنی یہ ادھورا ہے، یہ آپ کو مکمل معنی نہیں دیتا۔ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ آپ نے اگر مرکب تام، مرکب ناقص کو گرامر والی سیریز کے اندر پڑھا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ جو مرکب اضافی ہے یہ مرکب ناقص ہوتا ہے، یہ ادھوری بات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو 2 اسموں سے مل کر آپ کا مرکب اضافی بنتا ہے۔ اب یہ جو 2 اسم ہے نا اس میں سے ایک اسم ہوتا ہے مضاف، ایک اسم کا نام کیا ہوتا ہے؟ مضاف، اور دوسرے اسم کا نام ہوتا ہے مضاف الیہ۔ جب مضاف اور مضاف الیہ ملتا ہے تو یہ ہمارا ایک مرکب بنتا ہے جس مرکب کو ہم کہتے ہیں مرکب اضافی۔ کلیئر ہوگی بات؟ جس طریقے سے ہم مبتدا پلس خبر کو ملاتے ہیں تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ جملہ اسمیہ بنتا ہے۔ ویسے ہی جب مضاف اور مضاف الیہ ملتا ہے تو مرکب اضافی بنتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے اشارہ ہے، اس سے پہلے آپ نے پڑھا ہے اشارہ اور مشارن الیہ۔ اشارہ اور مشارن الیہ جب ملتا ہے تو یہ آپ کا مرکب کیا بنتا ہے؟ مرکب اشاری بنتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے یہ بھی جانا ہوگا کہ موصوف جب صفت کے ساتھ ملتا ہے تو یہ ایک مرکب بنتا ہے مرکب توصیفی۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے آپ نے اس سے پہلے بھی جانا ہوگا جار جب مجرور سے ملتا ہے تو یہ ایک مرکب بنتا ہے مرکب جاری۔ کلیئر؟ اسی طریقے سے مضاف جب مضاف الیہ سے ملتا ہے تو کیا بنتا ہے؟ مرکب اضافی بنتا ہے۔ یہ آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھا لیا۔ لیکن اب اگر آپ اس مرکب اضافی کی ڈیفینیشن لکھنا چاہیں، اس کی تعریف کرنا چاہیں تو بالکل آسان ہے۔ مرکب اضافی 2 اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو۔ یہ اس کی تعریف ہے۔ اگر میں یہ تعریف آپ کو لکھوا لوں تو انشاءاللہ آپ کو بآسانی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو میں یہاں پر اس کی تعریف میں یوں لکھ دیتا ہوں، 2 اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں، 2 اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں، مرکب اضافی 2 اسموں کے ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں پہلے اسم کی نسبت، جس میں پہلے اسم کی نسبت کس کی طرف؟ پہلے اسم کی نسبت دوسرے اسم کی طرف کی گئی ہو، دوسرے
इसम की तरफ की गई हो। ये इसकी डेफिनेशन है। क्लियर होगी बात? अब देखिए यहां पर हमने क्या कहा, हमने कहा दो इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं, क्योंकि इसमें दो इस्म का इस्तेमाल होता है जिसमें पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो। क्लियर होगी बात? जैसे मैं कहूं हामिद का कलम, हामिद का कलम, ये एक मिसाल है हमारे पास, मैं यहां पर लिख देता हूं हामिद का कलम। अब आप ध्यान से देखिए कि ये जो हामिद का कलम मैंने यहां पर लिखा ना, इसमें दो इस्म इस्तेमाल हुए हैं, है ना? कौन कौन सा? इसमें हामिद जो है ये भी इस्म है यानी नाउन है, और ये जो कलम है ये भी इस्म है यानी नाउन है। तो मैंने शुरू में कहा कि दो इस्मों के ऐसे मुरक्कब को कहते हैं जिसमें पहले इस्म की निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की गई हो। तो इसमें जब दो इस्म हमने जमा कर लिए तो ये एक मुरक्कब तैयार हुआ जिस मुरक्कब को मुरक्कब इजाफी कहा जाता है। और ये जो बीच में का आ गया ना, इसके लिए अरबी जुबान के अंदर कोई लफ्ज नहीं होता, ये ऐसे ही लिखा जाता है, के, का, की वगैरह है ना, इनका कोई तर्जुमा अरबी के अंदर नहीं होता, ये ऐसे लिखे जाते हैं निस्बत देने के लिए। ठीक है, तो हामिद भी इस्म, कलम भी इस्म, दोनों इस्म है। ठीक है, और कलम की निस्बत किसकी तरफ है? हामिद की तरफ है, क्योंकि हम कह रहे हैं हामिद का कलम। अगर ये होता हामिद का घर तो घर की निस्बत किसकी तरफ? हामिद की तरफ। आकिब की किताब तो किताब की निस्बत किसकी तरफ? आकिब की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम निस्बत दे रहे हैं। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आगे चलिए, मुरक्कब इजाफी के पहले इस्म को जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो उसे हम मुजाफ कहते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो उसे मुजाफ कहा जाता है। तो कलम की निस्बत हामिद की तरफ हो रही है ना, तो यह आपका अरबी के अंदर मुजाफ कहलाता है। ठीक है, और दूसरे इस्म को जिसकी तरफ निस्बत की गई हो, और निस्बत किसकी तरफ की गई? कलम की निस्बत किसकी तरफ की गई? हामिद की तरफ, तो यह आपका मुजाफ इलैह है। अब सवाल पैदा यहां पर यह होता है कि भाई जब भी हम मुरक्कब इजाफी को बनाते हैं तो हम मुजाफ को पहले लिखते हैं और मुजाफ इलैह को बाद में लिखते हैं, लेकिन आप यहां पर मुजाफ इलैह को पहले क्यों ला रहे हैं और मुजाफ को बाद में क्यों ला रहे हैं? अब आपको यह चीज भी ध्यान में रखनी है। आसान अल्फाज में पहले यह समझ लीजिए, जिस इस्म को निस्बत दी जाए उसे मुजाफ कहते हैं। निस्बत किसको दी जा रही है? कलम को। अगर यह होता हामिद का घर तो घर की निस्बत, हामिद की किताब तो किताब की निस्बत, हामिद का भाई भाई की निस्बत, हामिद की बहन बहन की निस्बत दी जा रही है। ठीक, तो उसे हम मुजाफ कहते हैं। और जिस इस्म के साथ निस्बत दी जाए उसे मुजाफ इलैह कहा जाता है। अब कलम की निस्बत हामिद के साथ है तो ये मुजाफ इलैह है, घर की निस्बत हामिद के साथ तो हामिद जो ये आपका मुजाफ इलैह है। तो ये बात आपको याद रखनी है, जिस इस्म को निस्बत दी जाए, कलम को निस्बत दी जा रही है तो ये आपका मुजाफ है, और जिस इस्म के साथ निस्बत दी जाए वो आपका मुजाफ इलैह कहलाता है। ठीक, अब सवाल यहां पर फिर भी रह जाता है कि भाई मुजाफ इलैह आपने पहले क्यों लिखा? ठीक है, तो याद रखें अरबी जुबान में क्या होता है, अरबी जुबान में मुजाफ को पहले लिखते हैं और मुजाफ इलैह को बाद में लिखते हैं, जबकि उर्दू जुबान में इसका उल्टा है। मैं यहां पर इस मुरक्कब को दोबारा लिखता हूं, मैं यहां पर लिखता हूं हामिद का कलम। ठीक, ध्यान रखें, यह हमारे पास उर्दू कंस्ट्रक्शन है, उर्दू मुरक्कब है। इसमें हामिद जो है ना ये आपका मुजाफ इलैह है और कलम जो है ना ये आपका मुजाफ है। लेकिन अरबी में जब भी आप इसको बनाएंगे ना, अरबी में जब भी आपने इसको लिखना हो, क्योंकि ये अभी उर्दू है, इसको ट्रांसलेशन आपने करना है अरबी में, लेकिन अरबी में क्या होगा, आपने मुजाफ को पहले लिखना है और मुजाफ इलैह को बाद में लिखना है। यानी अरबी में ऐसे होता है, उर्दू में उल्टा होता है। जैसे हामिद का घर, हामिद की किताब, अल्लाह का रसूल, अगर मैं यहां पर लिखूंगा ना अल्लाह का रसूल, तो इसमें लफ्ज अल्लाह जो है ना ये आपका क्या है, ये आपका लफ्ज अल्लाह जो है मुजाफ इलैह है और लफ्ज रसूल जो है ये आपका मुजाफ है। लेकिन जब हम इसको बनाएंगे अरबी के अंदर तो हमने मुजाफ को पहले लिखना है और मुजाफ इलैह को बाद में लिखना है। यानी जब हम अरबी में इसको बनाएंगे ना तो हम यहां पर लिखेंगे कलम, ऐसे कलमु हामिदिन, ठीक, और अल्लाह का रसूल रसूलु अल्लाही, रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अब आप देख लीजिए यहां पर क्या हुआ, यहां पर हमने अरबी के अंदर अब मुजाफ को पहले लाया और मुजाफ इलैह को बाद में लाया। इसी से लफ्ज रसूल मुजाफ और अल्लाह लफ्ज मुजाफ
इलै आया। तो इसीलिए मैंने शुरू में क्या कहा कि ये जो निस्बत वाला मैंने आपको कहा ना, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ये बड़ा ही आसान है। मुरक्कब इजाफी के पहले इस्म को जिसकी निस्बत दूसरे इस्म की तरफ की जा रही हो उसे मुजाफ कहते हैं। तो कलम की निस्बत हामिद की तरफ हो रही है तो यह आपका मुजाफ है, ठीक। और जिसकी तरफ निस्बत की गई हो वो आपका मुजाफ इलै है। तो रसूल लफ्ज मुजाफ और अल्लाह लफ्ज मुजाफ इलै। तो ये चीज आपने समझनी है। अब कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहां पर मुजाफ इलै को पहले क्यों लिखा, मुजाफ को बाद में लिखा। वो तो उर्दू के अंदर है, लेकिन अरबी के अंदर इसका उल्टा है। अरबी में आपने ये चीज इंशाल्लाह याद रखनी है। तो उर्दू और अरबी में फर्क है। उर्दू में अमूमन मुजाफ इलै पहले लिखा जाता है, मुजाफ बाद में, और जबकि अरबी के अंदर क्या होता है, तरतीब उल्टी है कि वहां पर मुजाफ को पहले लिखा जाता है और मुजाफ इलै को बाद में लिखा जाता है। क्लियर होगी बात। अब मुरक्कब इजाफी की आप पहचान कैसे करेंगे, यह भी एक मसला है। मुरक्कब इजाफी की पहचान बिल्कुल आसान है। उर्दू के अंदर मैं कह रहा हूं, उर्दू में जब भी आपने उर्दू में पहले मुरक्कब इजाफी की पहचान करनी होना, तो मुरक्कब इजाफी की पहचान उर्दू में कैसे होगी कि उन मुरक्कबात के अंदर आप देखेंगे का, के, की, रा, रे, री, ये वाले कलिमात जब आ जाएंगे ना तो अमूमन वहां पर मुरक्कब इजाफी होता है। का से देखेंगे हामिद का कलम, हामिद का घर, अल्लाह का रसूल। के से देखेंगे हामिद के भाई, हामिद के दोस्त, अल्लाह के रसूल, तो के आ गया। की हामिद की किताब, हामिद की घड़ी, हामिद की बहन, हामिद की फूफी वगैरह वगैरह, तो की आ गया। अब रा है तुम्हारा घर, तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा कलम। अब रे आ गया तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे घर, तुम्हारे जो है चीजें, तुम्हारी चीजें। अब री आ गया तुम्हारी किताब, ठीक है, तुम्हारी किताब, तुम्हारी बहन। तो का, के, की, रा, रे, री जिस भी मुरक्कब के अंदर आप देखेंगे ना तो वह आपका मुरक्कब इजाफी होगा। समझ आ रही है बात। तो बिल्कुल आसान है, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ठीक। अब फिर पेचीदा मुरक्कब भी होगा, हामिद के घर का दरवाजा, तो वो भी आपका मुरक्कब इजाफी है। तो उर्दू में मुरक्कब इजाफी पहचानना बिल्कुल आसान है। जब भी इस तरीके की कंस्ट्रक्शन मिले तो वहां पर आप मुरक्कब इजाफी को पहचानते हैं, ठीक। अब हम सबसे पहले यहां पर मुजाफ और मुजाफ इलै के कवायद को समझते हैं, ठीक है। बनाना कैसे है, ठीक है। मैं क्या करता हूं भाई, मैं इस पूरे को पहले मिटा देता हूं। मैं पहले ही इस मुरक्कब को यहां पर लिख देता हूं हामिद का कलम, ठीक है। मुजाफ और मुजाफ इलै के कायद बिल्कुल आसान है, तो मैं यहां पर लिखता हूं कवायद, ठीक। सबसे पहले मुजाफ के कायदे। मुजाफ के आपने दो कायदे याद रखने हैं, ठीक। पहला कायदा मुजाफ का एराब हल्का होता है, ये मैं अभी समझाऊंगा हल्का कैसे होता है। और मुजाफ पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता। ये दो कायदे हैं। और उसके बाद मुजाफ इलै। मुजाफ इलै का एक ही कायदा है, वो क्या है, मुजाफ इलै हमेशा मजरूर होता है, यानी ये हालत जर में होता है, या यूं समझ लो कि ये जेर के साथ ही लिखा जाता है। हालांकि जेर कोई एराब नहीं है, ठीक, लेकिन ये समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। और मुजाफ इलै जो होता है ना, ये अलिफ लाम के साथ भी लिखा जाता है। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा, मुजाफ इलै अलिफ लाम के साथ भी लिखा जाता है और यह हमेशा मजरूर होता है। पूरी अरबी जुबान के अंदर जो मजरूर की पहचान है ना, वो या तो हरूफ जार्रा की वजह से होगी या वो आपका मुजाफ इलै होगा। अगर कहीं पर भी अरबी जुबान के अंदर कोई मजरूर है, कोई इस्म मजरूर है, हालत जर में है, तो उसकी दो ही वजह हो सकती हैं। एक वजह कि उससे पहले हरूफ जार्रा के वो 17 हरूफ आ जाए, जैसे हो, अला, मिन, फी वगैरह वगैरह, या अगर वो ना हो, हरूफ जार्रा में से कुछ ना हो, फिर भी वो मजरूर हो, तो समझ लेना वहां पर मुजाफ इलै की क्या हो, वो मुजाफ इलै बन रहा हो वहां पर। तो ये कायदा आपने याद रखना है, बड़ी ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है, ठीक। अब मैं आपको समझाने लगा हूं। देखिए, मुजाफ का जो पहला कायदा है कि मुजाफ का एराब हल्का होता है। एराब हल्के से मुराद क्या होता है
کہ حرکت کو गिरा देना, حرکت को हटाना. इसमें आप देख लीजिए मुजाफ का एराब हल्का कैसे होगा अगर आपके पास मुनसरिफ अस्मा है. मुनसरिफ अस्मा से मुराद जो तनवीन वाले अस्मा है, दो पेश, दो जबर और दो जेर वाले. अगर आपने इनका एराब हल्का करना होना तो दो पेश को हम एक पेश में कन्वर्ट करेंगे, दो जबर को एक जबर में करेंगे और दो जेर को एक जेर में करेंगे. ये हो गया इसका एराब हल्का करना. ठीक है, तो मुजाफ जो होगा ना, अगर वो तनवीन वाला होगा तो उसका एराब हल्का कैसे होगा, उसकी तनवीन को खत्म कर लिया जाएगा. मिसाल के तौर पर कहीं पर लिखा है हामिदुन, इसका एराब हल्का करने को कहूं तो कैसे करेंगे, हामिदुन से ये बनेगा हामिदु, एक पेश के साथ. ठीक है, अगर ये होगा फॉर एग्जाम्पल बैतुन, बैतुन का माना घर, अगर इसका एराब हल्का करना है तो हम यहां पर लिखेंगे बैतु. अगर कहीं पर है रसूलुन, अब रसूलुन है दो पेश के साथ, लेकिन एराब हल्का करेंगे तो ये बनेगा रसूलु, एक पेश के साथ. तो ये हो गया एराब हल्का करना. तो तनवीन वाला जो इसम होगा उसका एराब हल्का कैसे होगा, दो जबर को एक जबर, दो जेर को एक जेर और दो पेश को एक पेश में कन्वर्ट करेंगे. क्लियर होगी बात. तो ये तो हो गया मुनसरिफ अस्मा का. अब रही बात गैर मुनसरिफ अस्मा की. गैर मुनसरिफ अस्मा का एराब हल्का नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो वहीं से एराब हल्का किए हुए होते हैं. ठीक है, यानी अगर कहीं पर लिखा है फॉर एग्जाम्पल नाम है फातिमा, फातिमा का जो नाम है ना ये आपका गैर मुनसरिफ है, ये तनवीन के साथ नहीं लिखा जाता, ये फातिमतुन नहीं लिखा जाता, तो ये गैर मुनसरिफ है. तो जब ये गैर मुनसरिफ है इसका एराब हम हल्का नहीं कर सकते. इसका एराब जो है ना वो आपका पेश है तो ये पेश ही रहेगा. डबल हरकत अगर होना तो उस सूरत में एराब हल्का होगा. गैर मुनसरिफ इसम का एराब हल्का नहीं होता. बात यहां तक क्लियर होगी. तो ये चीज आपने याद रखनी है. और दूसरी चीज आपने क्या याद रखनी है कि मुजाफ जो होता है ना उस पर अलिफ लाम दाखिल नहीं होता. अलिफ लाम उस पर दाखिल नहीं होगा. मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे किताबुन और इसको मैं लिखूंगा अल किताबु. ठीक है, किताबुन से ये बनेगा किताबु, और जब अलिफ लाम को मैं हटा दूंगा तो ये क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए किताबुन, बनना चाहिए ना. लेकिन एराब हल्का हो गया तो ये बन गया अल किताबु. तो मुजाफ पर अलिफ लाम भी नहीं आता, इस पर अलिफ लाम आपने नहीं लिखना. दो चीजें आपने करनी है, एक तो एराब हल्का करना है और अलिफ लाम को हटा देना है. मुजाफ इलैह का एक ही कायदा है कि वो हमेशा आपका मजरूर होता है. क्या होता है, मजरूर होता है. क्लियर होगी बात. अब आप आइए हामिद के कलम की तरफ. ये कायदे आपने नोट कर लिए, आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपनी कॉपी पर इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर मैं इंशाल्लाह आगे चलता हूं. स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत अच्छा. अब मैं आपको ये चीज इस मुरक्कब से समझा देता हूं. देखें, हामिद का कलम, सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि मुजाफ क्या है और मुजाफ इलैह क्या है. मैंने कहा कि हामिद जो है ना उर्दू के अंदर ये आपका मुजाफ इलैह है और कलम जो है ना ये उर्दू में आपका मुजाफ है. लेकिन जब हम अरबी में इसको बनाएंगे ना तो हम मुजाफ को पहले लिखेंगे, मुजाफ इलैह को बाद में लिखेंगे. यही मैंने कहा ना. अब आपको कलम और हामिद की अरबी भी मालूम होनी चाहिए. कलम की अरबी क्या है, कलम की अरबी है कलमुन. मैं यहां पर लिखूंगा कलमुन, लिखा मैंने दो पेश के साथ. और हामिद की अरबी क्या है, हामिद की अरबी है हामिदुन, लिखा मैंने. लेकिन अभी आपका मुरक्कब इजाफी बना नहीं है. क्यों, क्योंकि आपने वो दो रूल्स फॉलो करने हैं, दो कवायद अप्लाई करने हैं. मुजाफ के दो कायदे और मुजाफ इलैह का एक कायदा. यह आपका मुजाफ है और मुजाफ का कायदा क्या है, एराब हल्का होता है और अलिफ लाम दाखिल नहीं होता. तो हमने यहां पर अलिफ लाम पहले से दाखिल नहीं किया तो ठीक है, एक कायदा हमने अप्लाई कर लिया. दूसरा कायदा मुजाफ का क्या है कि उसका एराब हल्का होता है. और एराब हल्का कैसे होगा, दो पेश को एक पेश में कन्वर्ट करना है तो हमने इस एक पेश को मिटा देना है तो ये बन गया कलामु. तो ये आपका मुजाफ तैयार, मुजाफ तैयार हो गया. उसके बाद हामिदुन आपका मुजाफ इलैह है और मुजाफ इलैह क्या होता है, हमेशा मजरूर होता है. और मजरूर से क्या मुराद, हालत जर में होता है. तो हामिदुन अभी ये हालत रफा है दो पेश के साथ. इसकी हालत नसब क्या है, हामिदन, और हालत जर क्या है, हामिदिन. तो ये दो पेश जो है ना, ये दो पेश आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे दो जेर में. अब यहां पर सवाल होगा कि जो मुजाफ इलैह होता है ना ये अलिफ लाम के साथ होता है, तो हम यहां पर अल हामिद क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि याद रखें कि ये जो हामिद है ना ये आपका इसमें अलम है. क्या है, इसमें अलम है. और इसमें अलम जो होता है ना ये अलिफ लाम के बगैर होता है.
کیونکہ جب بھی کسی شخص کا نام ہوگا نا وہ الف لام کے ساتھ نہیں لکھا جائے گا. جیسے میرا نام ہے عاقب تو یہ عاقب ہی لکھا جائے گا نا, اس کو العاقب نہیں کریں گے. فاطمہ ہے تو اس کو الفاطمہ نہیں کہیں گے, ٹھیک ہے نا. عائشہ ہے اس کو العائشہ نہیں کہیں گے, عائشہ عائشہ ہی ہے. عمران ہے اس کو العمران نہیں کہیں گے. تو جو بھی نام ہے وہ آپ کے علم ہوتے ہیں اور وہ آپ کے معرفہ ہوتے ہیں. معرفہ کی 7 اقسام ہے, پراپر ناؤنز کی 7 اقسام ہے, 7 ٹائپس ہیں, اور اس میں سے پہلا ہے اسم علم. یہ آپ کا پہلے سے معرفہ ہوتا ہے. تو الف لام جو ہوتا ہے نا یہ کس لیے ہوتا ہے؟ عام سے خاص بنانے کے لیے. فار ایگزامپل اگر یہاں پر ہے قلمن, اس کو خاص بنانا ہے تو قلم کو ہم القلم بنا سکتے ہیں الف لام لگا کر. لیکن حامد کو الف لام نہیں لیا جا سکتا کیونکہ حامد پہلے سے ہی خاص ہے کیونکہ اس میں علم ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر مضاف الیہ کے شروع میں الف لام نہیں لگائے کیونکہ نام ہے. ہاں اگر اب یہ کوئی اور ہوتا, فار ایگزامپل ہم یہاں پر حامد کی جگہ لکھتے آدمی کا قلم, اور آدمی کی عربی کیا ہے؟ آدمی کی عربی ہے الرجل, ہے نا الرجل. لیکن آپ نے دیکھا کہ الرجل ہے, الف لام اس پر لگ سکتا ہے, حامد پر نہیں لگتا. تو ہم کیا کریں گے؟ الرجل ٹھیک ہے, تو یہ جو پیش ہے نا اس کو زیر میں کنورٹ کریں گے تو یہ بنے گا رجل, الرجل, تو بن گیا قلم الرجل, آدمی کا قلم. تو اس پر الف لام پاسبل ہے, حامد پر پاسبل نہیں ہے کیونکہ وہ آپ کا اسم علم ہے. تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے جو ہم نے یہاں پر کیا. تو بن گیا قلم حامد, حامد کا قلم. کلیئر ہوگی بات؟ بہت اچھا. چلے اسی طریقے سے ایک اور مثال, اللہ کا رسول. ٹھیک, دیکھیں اس میں اللہ لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اور رسول جو ہے یہ لفظ آپ کا مضاف ہے. تو عربی میں جب بنائیں گے تو رسول کو پہلے لانا ہے اور اللہ کو بعد میں لانا ہے. اب یہاں پر ہم کیا کریں گے بھائی؟ ہم یہاں پر رسول کی عربی لکھیں گے رسولن, لکھا جاتا ہے نا رسولن, اور اللہ کی عربی ہے اللہ, اللہ ایسے ہے نا, اس پر الف لام بھی آتا ہے. ٹھیک ہے, اب مضاف کا قاعدہ ہے کہ اعراب ہلکا کرنا ہے, تو یہاں پر 2 پیش جو ہے اس 2 پیش کو ہم ایک پیش میں کنورٹ کریں گے تو یہ بن گیا رسول. اور اللہ جو ہے یہ حالت رفع میں ہے, اس کو حالت جر میں لانا. کیوں؟ کیونکہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے. تو اس پیش کو بھی ہم مٹا دیں گے اور یہاں پر زیر لگائیں گے تو یہ بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ چیز آپ نے سمجھنی ہے. اب مضاف میں آپ نے جانا کہ اعراب ہلکا ہوتا ہے. اچھا, مثنیٰ کے اندر بھی اعراب ہلکا ہوگا, جمع سالم مذکر کے اندر بھی اعراب ہلکا ہوگا. مثنیٰ کے اندر کیسے اعراب ہلکا ہوگا؟ فار ایگزامپل کہیں پر ہے کتابانی, یہ آپ کا مثنیٰ ہے. اسی طریقے سے ہے کتابین, کتابین. اور جمع سالم کے اندر کیا ہے؟ مسلمون اور مسلمین. ان کا اعراب ہلکا کیسے ہوگا کہ ان کے آخر میں جو یہ نون ہے نا اس کو آپ نے ہٹانا ہے, یہ ہو گیا اس کا اعراب ہلکا کرنا. تو مثنیٰ کا اعراب ہلکا ہوگا نون ہٹا کر اور جمع کا ہوگا نون ہٹا کر. تو یہ کیا بنے گا؟ یہ بنے گا مسلمون سے مسلمون سے مسلمو, مسلمین سے مسلمی, کتابان سے کتابا, کتابین سے کتابی. نون کو آخر میں ہٹا دینا ہے تو یہ اعراب ہلکا ہو گیا مثنیٰ کے اندر اور جمع کے اندر. فی الحال ہم جمع اور مثنیٰ کی بات یہاں نہیں کر رہے, وہ آگے آئے گی, لیکن آپ نے یہ چیز یاد رکھنی ہے. تو کلیئر ہوگی بات؟ تو یہ تھا ہمارا مرکب اضافی. بڑی ہی آسان طریقے سے آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا, کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ, تو یہ چیز آپ سمجھ لیجئے گا. اب اس سبق کے اندر ایک حرف ندا بھی استعمال ہوا ہے. اگر آپ پیج نمبر 27 کھولیں گے تو شروع میں آیا ہے اکتاب محمد ھذا یا یاسر, اس میں یا آیا ہے. اب یہ جو یا ہے نا, یا اس کو سمجھ لیجئے گا, یہ جو یا ہے نا یہ بلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں حرف ندا, بلانے کے لیے. اور اس کے بعد عموماً آپ دیکھیں گے جب بھی اسم آئے گا نا تنوین والا, اس کی تنوین بھی ختم ہو جائے گی. فار ایگزامپل اگر کہیں پر ہے محمدن, ہمیں محمد کو بلانا ہے, کیسے بلائیں گے عربی میں؟ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اے لڑکے, اے عاقب, او لڑکے, او عاقب, تو او اور اے کا استعمال کرتے ہیں. لیکن عربی میں بلانے کے لیے یا کا استعمال ہوتا ہے زیادہ تر. تو ہم شروع میں جب یا لگائیں گے تو یہ بن گیا یا محمدن. لیکن یاد رکھیں یہ جو 2 پیش ہے نا یہ ایک پیش میں کنورٹ ہو جاتی ہے یا کے بعد, تو یہ بنتا ہے یا محمدو. اگر عاقبن ہے یا عاقبو, اگر حامدن ہے تو یا حامدو, ایک پیش کے ساتھ.
यासिरुन है, या यासिरु। क्लियर होगी बात? तो बहुत अच्छा। अब हम यहां पर नसे दर्स की तरफ आते हैं, इस किताब की तरफ आइए इंशाअल्लाह, और आपको अब बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि मुरक्कब इजाफी को आपने आसान तरीके से यहां पर समझ लिया। ये हमारे पास पेज 27 देखिए भाई, शुरू में सईद जो है ये सवाल कर रहा है यासिर से, अकिताब मुहम्मदिन हादा या यासिर, क्या मोहम्मद की किताब है ये ए यासिर? क्या ये मोहम्मद की किताब है ए यासिर? अकिताबु मुहम्मदिन। अब इसमें आप देख लीजिएगा, ये जो हमारे पास ये पूरा दर्स है ना, जिसमें ये सवालात और जवाबात हो रहे हैं, इसमें आपको बुनियादी जो इसका मौजू है ना, इस पूरे सबक में आपको बार बार ऐसे जुमले मिलेंगे, जैसे किताब मुहम्मदिन आ रहा है यहाँ पर, इसी तरीके से जो है दफ्तर अम्मारिन आ रहा है, और इसी मकतबिल मुदर्रिस आ रहा है, हकीबतिल मुदर्रिस आ रहा है। ठीक है, तो इन सब में पहला इस्म मुजाफ और दूसरा इस्म मुजाफ इलैहि दिया गया है। लिहाजा आज के सबक का मकसद ही यही है कि हम मुरक्कब इजाफी को पहचानना, मुरक्कब इजाफी को बनाना और इस्तेमाल करना सीखें। क्लियर होगी बात? तो चलिए भाई, सवाल हो रहा है, सईद कर रहा है, अकिताब मुहम्मदिन हादा, अकिताब मुहम्मदिन हादा, ए यासिर क्या ये मोहम्मद की किताब है? ये मोहम्मद की किताब का तर्जुमा किससे आपने किया? देखिए यहां पर है किताबु मुहम्मदिन, असल में ये था किताबुन मुहम्मदुन। क्या था? असल में ये था किताबुन मुहम्मदुन, लेकिन यहां पर क्या है? किताबु मुहम्मदिन। इस दो पेश को एक पेश में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुजाफ है, और मुहम्मदुन को मुहम्मदिन बनाया क्योंकि मुजाफ इलैहि है, तो बन गया अकिताबु मुहम्मदिन, क्या मोहम्मद की किताब है? हाजा ये, या यासिरु ए यासिर। तो क्या कहा जा रहा है? ओ यासिर, इज दिस मोहम्मद's बुक? तो यासिर क्या जवाब दे रहे हैं? ला हादा किताबु हामिदिन, नहीं ये हामिद की किताब है। तो हामिद की किताब का तर्जुमा आपको किसने दिया? किताबु हामिदिन, हामिद की किताब। ठीक है, तो हमने किताब की निस्बत किसकी तरफ की? हामिद की तरफ की। तो किताब आपका मुजाफ है और हामिद आपका मुजाफ इलैहि है। नो, दिस इज द बुक ऑफ हामिद, या दिस इज हामिद's बुक। ठीक, उसके बाद सईद सवाल कर रहे हैं, आइना किताबु मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहां है? आइना कहां? किताब मुहम्मदिन, मोहम्मद की किताब कहां है? वायर इज द मोहम्मद's बुक? तो वो क्या कह रहा है? हुआ अलल मकतबी हुनाक। अब यहां पर कोई मुरक्कब इजाफी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर अला के बाद अल मकतब अलिफ लाम के साथ आया है, और ये मकतब यहां पर जेर के साथ क्यों है? क्योंकि पीछे अला हर्फ जर आया, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा। तो ये भी आपने याद रखना है, हुआ अलल मकतबी हुनाक। अच्छा, ये जो हुनाक है ना, हुनाक का माना होता है देयर, जिसको हम कहते हैं वहां, और एक होता है हिना, या एक होता है हुना, उसका माना होता है हेयर, हेयर एंड देयर। तो हुना का माना है वहां। वायर इज मोहम्मद's बुक? हुआ अलल मकतबी हुनाक, वो वहां मेज पर है, इट इज देयर ऑन द डेस्क। ठीक, उसके बाद सवाल हो रहा है, सईद कर रहे हैं, आइना दफ्तरु अम्मारिन, आइना दफ्तरु अम्मारिन। असल में क्या था? असल में यह था दफ्तरुन अम्मारुन, दोनों दो पेश के साथ थे, लेकिन दफ्तर यहां पर एक पेश के साथ जब भी आप देखेंगे ना, तो समझ लेना भाई यहां पर कुछ चीज हुई है। दफ्तरुन दो पेश के साथ लिखा जाता है, लेकिन जब ये एक पेश के साथ आ गया तो समझ लेना यहां पर एराब हल्का हुआ है, तो यह आपका मुजाफ है। और अम्मारुन दो पेश के साथ लिखा जाता है, लेकिन दो जेर के साथ यहां पर दफ्तर के साथ आया है, तो अम्मार मुजाफ इलैहि है, तो ये मुरक्कब इजाफी है। तो इसका तर्जुमा क्या होगा? अम्मार की किताब, अम्मार की कॉपी, अम्मार की कॉपी। तो ये बन गया आइना दफ्तर अम्मार, अम्मार की कॉपी कहां है? वायर इज अम्मार्स नोटबुक? तो यासिर क्या जवाब दे रहे हैं? हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस। अच्छा, अब यहां पर समझने वाला एक पॉइंट है, वो ये है, देखें यहां पर है मकतबिल मुदर्रिस, असल में ये था मकतबुन और अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु दोनों हालत रफा में थे। ये भी हालत रफा में, ये भी हालत रफा में। अगर मुझे बनाना हो मुदर्रिस का मेज, मुदर्रिस का डेस्क, तो इसका तर्जुमा कैसे करूंगा? मकतबुन है, दो पेज के साथ है, इसको मुजाफ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? एक पेज के साथ। तो ये बन गया मकतबु, मकतबु अल मुदर्रिस। अब मुदर्रिस को हालत जर में लाना है, तो ये बनेगा मकतबु
المدرसी, तो बन गया मकतब المدرس. तो इसका तर्जुमा होगा मुदर्रिस का मेज. इसका तर्जुमा हमें मिला. लेकिन यहां पर यासिर कह रहा है हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस, तो इसने मकतब के नीचे जेर क्यों लगाई? ये क्यों नहीं कह रहा है हुआ अला मकतबुल मुदर्रिस? क्योंकि यहां पर इस मकतबू से पहले जब अला आ गया, और ये अला क्या करता है, अला हालत जर में लेकर चला जाता है, तो ये अला जो अमल करेगा ना, ये इस मुजाफ पर करेगा, मुजाफ इलैह पर नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि कुल्लु मुदाफ इलैहि मजरूरुन, मुजाफ इलैह हमेशा मजरूर होता है. ठीक है, ये हमेशा ही मजरूर होता है. तो ये अला अमल करेगा इस मकतब पर, तो ये पेश इस पेश से जेर में कन्वर्ट हो जाएगा, अला की वजह से हालत जर में चला जाएगा. तो ये बन गया अला मकतबिल मुदर्रिस, हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस. वो कहां है? उस्ताज की मेज पर है. अम्मार की किताब कहां है? हुआ अला मकतबिल मुदर्रिस, वो उस्ताज की मेज पर है. इट इज ऑन द टीचर्स डेस्क. क्लियर होगी बात? बहुत अच्छा. ठीक, तो ये आपने इस तरीके से समझ लिया. उसके बाद सईद फिर से सवाल कर रहा है, कलम मन हादा या अली, ए अली ये किसका कलम है? ओ अली हुज पेन इज दिस? तो अलीयुन क्या जवाब दे रहे हैं? अलीयुन हादा कलमुल मुदर्रिस, हादा कलमुल मुदर्रिसी. अली कह रहे हैं कि ये उस्ताज का कलम है, दिस इज द टीचर्स पेन. हादा कलमुल मुदर्रिसी. कलमुन था दो पेश के साथ, लेकिन एक पेश के साथ. क्यों? क्योंकि मुजाफ है. अल मुदर्रिसु था, लेकिन अल मुदर्रिसी आ गया जेर के साथ, क्योंकि मुजाफ इलैह है. कलमुल मुदर्रिसी, उस्ताज का कलम. हादा ये उस्ताज का कलम है. तो ये एक पूरा जुमला बन गया. हाजा इसके अंदर मुब्तदा है, कलमुल मुदर्रिसी मुजाफ मुजाफ इलैह मिलकर मुरक्कब इजाफी होकर खबर, तो मुब्तदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया बन गया. क्लियर होगी बात? उसके बाद फिर आता है आगे, सईद सवाल कर रहे हैं, आइना हकीबतुल मुदर्रिस, उस्ताज का बैग कहां है? वेयर इज द टीचर्स बैग? हकीबतुन कहा जाता है बैग को. मैं यहां पर लिखता हूं हकीबतुन, और अल मुदर्रिस है तो अल मुदर्रिसु. दोनों मैंने हालत रफा में रखे, लेकिन मुझे हकीबतुन को मुजाब बनाना है, और मुजाब बनाने के लिए क्या करना है? एक तो अलिफ लाम नहीं लगाना, एराब हल्का करना है. दो पेश है, एराब हल्का कैसे होगा? एक पेश देकर. अल मुदर्रिस को मैंने मुजाफ इलैह बनाना है, और मुजाफ इलैह कैसे बनेगा? पेश को हटाकर जेर देनी है. तो ये बन गया हकीबतुल मुदर्रिस, उस्ताज का बैग, उस्ताज का बैग, उस्ताज का बस्ता. ठीक है, इस तरीके से. अब अली ने इसका जवाब क्या दिया? हिया तहतल मकतबी, हिया तहतल मकतबी, वो मेज के नीचे है. इट्स अंडर द डेस्क, इट इज अंडर द डेस्क, यानी वो मेज के नीचे है. यहां पर आप इमेज में देख सकते हैं मेज के नीचे है. तो अली ने जवाब दिया हिया. अच्छा, यहां पर अली ने जो जवाब दिया ना, वो कैसे दिया? ऊपर दफ्तर अम्मार, अम्मार की किताब कहां है? तो जवाब हुआ यासिर ने दिया हुआ. सईद ने कहा कलम मन हादा, तो हाजा से जवाब हुआ. ऊपर भी किताबु मोहम्मद, किताब कहां है? तो हुआ अला मकतबी हुनाक. लेकिन यहां पर जब बैग के बारे में पूछा गया तो अली ने जवाब दिया हिया से. इसने हिया का इस्तेमाल क्यों किया, हुआ का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्योंकि हकीबतुन जो है ना, ये गोलता इसके आखिर में है, तो ये मुअन्नस है. तो जब हकीबतुन मुअन्नस है, इसी वजह से अली ने हिया यहां पर जमीर लाई. जमीर क्या लाई? हिया जमीर लाई. क्यों? क्योंकि हकीबतुन आपका मुअन्नस इस्म है. क्यों मुअन्नस है? क्योंकि उसके आखिर में गोलता है, और गोलता अलामत होती है मुअन्नस इस्म की. क्लियर होगी बात? तो इसने कहा कि हिया हकीबतुल मुदर्रिस, वो किसका बैग है? मुदर्रिस का बैग है. बात क्लियर होगी? बहुत अच्छा. तो इस तरीके से ये जो पहला सबक है ये आपने समझ लिया. अब यहाँ पर तमारीन है, इस पहली तमरीन को इंशाल्लाह कर देते हैं. उसी के साथ इंशाल्लाह इस क्लास को हम ख़त्म कर देते हैं. नेक्स्ट वाली क्लास में हम इंशाल्लाह बाकी तमारीन करेंगे और मुरक्कब इजाफ़ी को बआसानी समझेंगे. ठीक है, क्योंकि मुरक्कब इजाफ़ी एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने समझना है, और कुरान में आप देखेंगे, हदीस में आप देखेंगे, बार बार आपको ये मुरक्कबात मिलेंगे जुमलों के अंदर. ठीक है इंशाल्लाह. चलिए, अब यहाँ पर तमारीन. सबसे पहली, अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, क्या कहा जा रहा है? ये मैंने आपको कराया है. अजिब जवाब दो, आंसर, अन से, अल अस्इलति सवालात, द क्वेश्चंस, अल आतियति आने वाले दरजेल. और पूरा तर्जुमा क्या होगा? अजिब अनिल अस्इलतिल आतिया, दरजेल सवालात के जवाब दो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी नीचे दिए गए सवालों का जवाब दो. ठीक है, अब जवाब कैसे आप देंगे? क्या कहा जा रहा है? देखिए, यहां पर कोई भी एराब नहीं है, ये आपको खुद से लगाना है. आईना किताब मोहम्मद,
اب اس کتاب اور محمد کے اندر ایک مضاف ہے ایک مضاف الیہ ہے. کتاب مضاف ہے تو کیا کہیں گے؟ آئینہ کتابو، ایسے آئینہ کتابو. عمار ہے تو کیا لکھیں گے؟ آئینہ کتابو محمدن. محمد کی کتاب کہاں ہے؟ تو اوپر سوال ہوتا آئینہ کتاب محمد، تو کہاں تھی؟ ہوا علی المکتب ہناک، وہ وہاں میز کے اوپر ہے. تو جواب میں وہی لکھ سکتے ہیں اوپر والا. دوسرا سوال آئینہ کتاب عمارن، دو زیر کے ساتھ. تو یہاں کہاں تھی؟ آئینہ دفتر عمار، عمار کی کاپی کہاں تھی؟ ہوا علی مکتب المدرس، وہ استاذ کی ٹیبل کے اوپر تھی، استاذ کے مکتب کے اوپر تھی. تو آپ وہ جواب یہاں پر لکھ سکتے ہیں. تیسرا سوال آئینہ حقیبہ المدرس، کیا اعراب لگائیں گے؟ حقیبۃ المدرس، تو یہ اعراب آپ لگائیں گے. آئینہ حقیبۃ المدرس، مدرس کا بیگ کہاں ہے؟ تو وہ کہاں تھا؟ ٹیبل کے نیچے تھا. تو آپ کہیں گے ہی تحت المکتبی، وہ کہاں ہے؟ ٹیبل کے نیچے ہے. کلیئر ہوگی بات؟ تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ تمارین کریں گے. تو یہ 3 سوالات یہاں پر ہیں. اس کے بعد ہمارا جو یہاں پر دوسری جو تمرین آتی ہے، اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ. اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ، پہلے لفظوں کو دوسرے لفظ کی طرف مضاف بناؤ. میک دا فرسٹ ورڈ این اضافہ، یعنی کنسٹرکٹ فریز ود دا سیکنڈ ورڈ. ٹھیک ہے، تو یہ بڑا ہی آسان ہے. اس کو میں انشاءاللہ ہوم ٹاسک کے طور پر آپ کو دے دیتا ہوں. آپ اس کو انشاءاللہ کر کے آئیں گے. 1-2 انشاءاللہ سمجھا لوں گا، باقی انشاءاللہ اگر آپ نے جو شروع والی باتیں سمجھی ہیں تو یہ انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، چلیے یہ ہمارے پاس اضف الکلمۃ الاولی الی الثانیہ کیا کہا جا رہا ہے بھائی؟ یہاں کہا جا رہا ہے کہ پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف مضاف بناؤ. پہلے لفظ کو دوسرے لفظ کی طرف کیا بناؤ؟ مضاف بناؤ. دیکھیں یہاں پر دیا گیا ہے کتاب محمد، دونوں آپ کو تنوین کے ساتھ دیے گئے ہیں، تنوین ضمہ کے ساتھ، دونوں حالت رفع دیے گئے ہیں. لیکن ایک کو مضاف بنانا ہے اور ایک کو مضاف الیہ بنانا ہے. اب ظاہر سی بات ہے جب ایک مضاف بنے گا اس پر تو پیش آئے گا، لیکن مضاف الیہ پر پیش نہیں آئے گا، نہ ہی 2 پیش آئے گا. اس پر زیر آئے گی یا 2 زیر آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھیے کتاب محمد ہے، تو اس کو کیا کرنا ہے؟ کتاب کو مضاف بناؤ، محمد کو مضاف الیہ بناؤ. تو اعراب کیا ہوگا؟ کتاب سے کتابو، محمد سے محمدن. اب دیکھیے قلم حامد، دونوں یہاں پر کیا ہے؟ 2 پیش کے ساتھ ہے. تو ہم کیا لکھیں گے؟ ہم یہاں پر لکھیں گے ایسے قلم حامدن، حامد کا قلم. بیت عباسن، تو کیا لکھیں گے؟ بیت عباسن، اس طریقے سے. غرفۃ علی، غرفۃ علی. دفتر سعید، دفتر سعید. مندیل یاسر، مندیل یاسرن. ٹھیک ہے، قمیص عمار، سریر خالدن. اس طریقے سے یعنی قلم حامدن، حامد کا قلم. بیت عباس، عباس کا گھر. غرفۃ علی، علی کا کمرہ. دفتر سعید، سعید کی کاپی، سعید کی نوٹ بک. مندیل یاسرن، یاسر کا رومال. قمیص عمار، عمار کی قمیص. سریر خالدن، خالد کا پلنگ، خالد کا بیڈ. اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ بنائیں گے. پھر دیکھیے مفتاح البیت، اس میں الف لام کا ترجمہ آ گیا. مفتاح البیت، گھر کی چابی. دکان التاجر، تاجر کی دکان. بیت المہندس، انجینئر کی، انجینئر کا گھر. اسم الولد، لڑکے کا نام. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. بنت الطبیب، طبیب کی بیٹی، ڈاکٹر کی بیٹی. مفتاح السیارہ، مفتاح السیارتی، گاڑی کی چابی. تو دیکھیے کتنا آسان ہے بھائی. اس میں آپ کو پہلے یہاں پر صرف علم دیے گئے ہیں، ان پر الف لام داخل نہیں کرنا، صرف 2 زیر لگانی ہے. لیکن بعد والا آپ کا الف لام کے ساتھ ہے، صرف 1 زیر لگانی ہے، مضاف الیہ بنانا ہے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ آپ یہ تمرین کر کے آئیں گے. میں نے یہاں پر یہ کرا دی، لیکن آپ اس کو انشاءاللہ اپنی کاپی پر نوٹ کریں گے. کل والی کلاس میں انشاءاللہ میں یہ اضف آپ کو سمجھاؤں گا یہ بنا کیسے ہے. یہ اضف جو ہے نا، یہ ایک فعل امر ہے. اس کا مادہ ہے ضاد یا عرفہ، یہ غیر صحیح فعل ہے. اور حرف علت جب عین کلمے پر آتی ہے تو وہ آپ کا اجوف کہلاتا ہے، اجوف واوی. پھر ہم اس کو باب افعال پر ڈالیں گے، افعل یفعل سے. پھر یہ بنے گا اضیف یضیف. ٹھیک ہے، افعل یفعل، افعل یفعل، اضیف یضیف، اس طریقے سے بنے گا. پھر اس میں وہ اجوف کا قاعدہ لگا دیں گے. حرف علت پر حرکت ہو، پیچھے ساکن ہو تو حرف علت اپنی حرکت پیچھے دے گا. تو یہ اضیف سے
अज़ीफ़ा बनेगा, फिर हरकत की मुवाफ़िक हरफ में तब्दील करेंगे तो अज़ीफ़ा बनेगा अज़ाफ़ा युज़ीफ़ु इज़ाफ़तन, ठीक है। फिर युज़ीफ़ु से फिर तुज़ीफ़ु बनाएंगे, फिर आप वो हमज़ा लाएंगे तो आपका अज़िब बनेगा। ये नेक्स्ट वाली क्लास में इंशाल्लाह करा दूंगा, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरीके से इंशाल्लाह ये असाइनमेंट आप करेंगे। साथ ही साथ ये तमरीन नंबर 3 भी अब आपको करनी आ जाएगी। इक़रा वक्त मअ ज़ब्ति अवाखिरिल कलिमात, ठीक है ना। आखिरी हरफ पर आपने क्या लगानी है, आपने एराब लगाना है। देखिए एक करा देता हूं, बाब अल मदरसा, मदरसे का दरवाजा, तो बाबू अल मदरसती बन गया। हिमार अर्रजुल, हिमारु अर्रजुली, हिमारु रजुल आदमी का गधा। बैत हामिद, बैतु हामिदिन, हामिद का घर। तो इसमें हामिद आपका अलम था इसलिए दो ज़ेर के साथ लिखा, क्योंकि अलिफ लाम के बगैर आता है और तनवीन के साथ आता है। अब सय्यारा अल मुदीर, किसकी, प्रिंसिपल की गाड़ी। मिंदील अम्मार, अम्मार की रुमाल। इस्मु तालिब, तालिब इल्म का नाम। बैत अल्लाह, अल्लाह का घर। फी किताब अल्लाह, असल में है किताबुल्लाह, लेकिन फी की वजह से किताब क्या बनेगा ये आप इंशाल्लाह खुद लिखेंगे। मिन बैत अल मुदर्रिस, असल में है बैतुल मुदर्रिस, लेकिन मिन की वजह से बैत क्या बनेगा, किस हालत में आएगा ये आप इंशाल्लाह लिखेंगे। असल में है मकतबुल मुदीर, लेकिन आप अला की वजह से मकतब को क्या बनाएंगे ये आप इंशाल्लाह लिखेंगे। तो इसी तरीके से आप ये करेंगे। फिर ये जो चौथी तमरीन है इसमें बहुत सारे जुमले इंशाल्लाह हैं, तकरीबन 14 या 15 इंशाल्लाह जुमले हैं, वो मैं इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वाली क्लास में मिसालों के साथ आपको कराने वाला हूं। आज आपका जो असाइनमेंट है वो आपका तमरीन नंबर 2 और तमरीन नंबर 3 अपनी कॉपी पर लिखना है और एराब आपने बराबर लगाना है। एराब अगर आपने बराबर लगा दिया तो समझो आपने मुरक्कब इजाफी को समझ लिया, और आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना है, आपने ध्यान से कवाइद को अप्लाई करना है। कवाइद याद होंगे, मुजाफ और मुजाफ इलैह के 3 ही कवाइद है, मुजाफ के 2 और मुजाफ इलैह का 1। मुजाफ का क्या है, एराब हल्का करो, तनवीन वाला है तो एक पेश के साथ, एक जबर के साथ, एक जेर के साथ लिखो, और अगर गैर मुनसरिफ है तो उस पर कोई एराब हल्का नहीं होगा और अलिफ लाम के बगैर लिखा जाएगा मुजाफ। और मुजाफ इलैह जो होता है ना वो अलिफ लाम के साथ लिखा जाता है अगर वो अलम है, इसमें अलम है, किसी का नाम है, हामिद, खालिद, फातिमा, आयशा, किसी का नाम है शख्स का, तो उस पर अलिफ लाम नहीं लगेगा। बाकी जितनों पर अलिफ लाम लगेगी तो उस पर आपने अलिफ लाम लगाना है मुजाफ इलैह में, लेकिन उसको हालत जर में लाना है। ये आपने काम करना है। तो जब आप ये काम करेंगे तो इंशाल्लाह ये टॉपिक आपको क्लियर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास आज की समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो इस वीडियो को अपने दीनी भाइयों और बहनों के साथ लाजमी शेयर कर लीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।